Yes. Now let's we start case study based questions for class 9th. These questions are very important for PT3 and the session ending examination. So dear students, without wasting the time, let's we start now. First question is Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know that the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height as 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively. Listen me carefully dear students. In my previous video there are something misprint in the question paper. So let me correct this time now. First correction is the area of, let me take my pencil, not working now. Okay, yes, it is working. The area of each square sheet which cover the box, each side 40 centimeter. Okay, and this is 25th December. So let's we start to solve the questions. The surface area of the wooden box is number 1. Surface area of wooden box is, why it is not working properly? Surface area of box क्यूबॉइडल है, सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्वाइस LV प्लस BH प्लस HL. Okay, twice LV, that means it is twice 80 into 40 plus 40 into H 20 plus 20 into 80. Okay, so simplify it. It is 3200 plus 800 and plus 1600. When you add all these three numbers, I think it's 5600 multiply with 2, it will be 11200. Okay, centimeter square. So our first option is the correct answer. Second question is the area of square sheet of the paper which covered the box with each side 40 centimeter. अब स्क्वायर सीट है आपकी, तो स्क्वायर सीट में स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर सीट that will be side into side 40 into 40. It is 1600 centimeter square. So which option is correct? First option is correct. Okay. So on which day we all celebrate Christmas Day? No doubt 25th December. Last paper में ये sprint था. How many of square sheets of paper of size 40 centimeter would she require? So अगर आप ये देखते हैं कि किसी भी क्यूबॉइडल बॉक्स को अगर रैप करना है, पेपर से रैप करना है, तो कितना पेपर उसके लिए चाहिए? तो अगर सीट का जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है कितना, ईच साइड 40, तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर सीट पेपर, कितनी सीट्स चाहिए? नंबर ऑफ सीट्स वी रिक्वायर्ड, that is equal to total surface area of the box 11200 divided by 40 into 40. So it is how much? 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 आ जाएगा आपका, राइट?
I think it is not charged. No problem. Let's me take some points. How many rectangular sheets of paper side 80 centimeter by 20 centimeter? So same answer. 11200 surface area of the box divided by the rectangular sheet 80 by 20. It will be same 7 sheets. 7 sheets. ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ. ओके. एंड एक और इसमें कोई क्वेश्चन था, ये मैंने किया नहीं था, ये डायरेक्ट बता दिया आपको कि 25 दिसंबर को ही हमारा क्रिसमस डे सेलिब्रेट होता है. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. A triangular park ABC has sides 120, 80 and 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. The cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. देखिए गेट का एक साइड ये दिया हुआ है आपका, इसको अच्छी तरह देख लीजिए और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल की साइड्स क्या है आपकी, ए बी 50 मीटर है, बी सी आपका 120 मीटर है एंड ए सी आपका 80 मीटर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगुलर पार्क. नो प्रॉब्लम, पेरीमीटर क्या होगा 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250. अगर ये 250 हो गया तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2. आई थिंक इट इज 125 सेंटीमीटर. तो अगर ये 125 सेंटीमीटर आ गया आपका तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नो प्रॉब्लम. द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, कितनी चाहिए वायर आपको, देखिए इस गेट में वायर नहीं लगेगा यहाँ पर, तो जो टोटल पेरीमीटर है दैट इज आपका 250 है और उसमें से अगर आप 3 मीटर का ये गेट माइनस कर दें स्पेस जो दिया है दैट विल बी 247 सेंटीमीटर. तो 2 बी इज द करेक्ट आंसर. अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एरिया. ओके, तो एरिया कैलकुलेट करने में अच्छी तरह पता है आपको, बेस इंटू हाइट होता तो हम हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देते, बट यहाँ पर है नहीं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कितने एरिया में वो प्लांटिंग हो सकती है, तो आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर रीजन. सो सबसे पहले एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर वो आ चुका है हमारे पास, कितना आया था 125 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी. तो s माइनस ए कितना हो जाएगा आपके पास, 125 माइनस 50 कर दो, चलो 75 हो गया. s माइनस बी कितना हो जाएगा आपके पास, 125 माइनस 120 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. सेंटीमीटर लगाते जाइए इसमें. s माइनस सी कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 125 माइनस 80 दैट विल बी 45 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. 125 into s minus a 75 and it is 5 s minus b and it is s minus c. डायरेक्ट मैंने ये तीनों वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रख दी. When you simplify these numbers, so it will be 375 root 15, correct, centimeter square. So which option is correct? B option. लो A फर्स्ट सेकंड थर्ड में B ऑप्शन ही करेक्ट था. इसमें भी आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, पर मीटर की जगह पर सेंटीमीटर कर लीजिए और ये 120 मीटर की जगह सारे ये सेंटीमीटर कर लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमने एनसीईआरटी से लिया है और हमने सभी यूनिट्स को सेंटीमीटर में बना लिया है. राइट, तो अब आपको आसानी हो जाएगी. तो रेट क्या है 1 सेंटीमीटर का ₹20. सो आपको फेंसिंग कितने एरिया कितनी लेंथ में करनी है 247 में. तो जब 240 सेंटीमीटर में आपको फेंस करनी है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग विल बी एट द रेट ऑफ ₹20 है ही, 247 इंटू 20 दैट विल बी कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक 0 2 7 जा 14 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4 4940 इतने रुपीज लगेंगे फेंसिंग में आपको. ओके, एक कौन सा है 4940, सी इज द करेक्ट आंसर. If the height of the gate is 1 meter, then how much iron sheet required to make the gate? अब जरा गेट को देख लीजिए, अगर इसकी ये हाइट 1 मीटर है तो गेट का ये ब्रेथ कितना दिया हुआ था 3 मीटर. तो लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर गेट होता है तो लिखेंगे मटेरियल या मेटल रिक्वायर्ड फॉर द गेट
कितना चाहिए आपको? दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल. ये आपके एनसीईआरटी का ही है कि यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड फॉरेनहाइट एंड द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन द सेल्सियस. हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट द कन्वर्ट फारेनहाइट टू द सेल्सियस. और ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, जीके के बेस पर भी सारे एग्जामिनेशन में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा. When we draw the graph, अगर हम इसके लिए एक टेबल तैयार करेंगे इस तरह की और इसमें फारेनहाइट और सेल्सियस के दो दो टेम्परेचर लेकर के प्लॉट करेंगे तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी ग्राफ पर? स्ट्रेट लाइन. हर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में स्ट्रेट लाइन ही मिलती है. अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो F इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपका? F इज इक्वल टू है 9/5. My pencil is not sufficient charge this time. तो C हो जाएगा 30, प्लस में आ जाएगा 32, राइट. और ये बन जाएगा 5 6 जा 30 और 9 6 जा 54 प्लस 32. कितना आएगा इसमें? दैट इज इक्वल टू 9 6 जा 54. No, it is not fully charged. Let me complete it. So आप वैल्यू रख करके इसको करते चले जाइएगा तो आपको इसमें सबसे पहले जो मिलेगी वैल्यू टोटल 86 फारेनहाइट आ जाएगा. ओके. 86 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए. दैट विल बी 86 डिग्री एफ. ओके. नेक्स्ट है आपका द टेम्परेचर. अब 95F. अब तो यहां पर हमने F निकाल लिया था, नो प्रॉब्लम. अब यही 95 दे दिया. एक बार फॉर्मूला फेयर लिख के देखता हूं मैं. F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32. ओके. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ F इज गिवन 95. 95 प्लस 32 इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में और 9/5C से आप C कैलकुलेट कर दीजिए. तो ये कितना बचेगा? 95 माइनस 32 कितना होता है? 37 हो जाएगा. नहीं 3 आ जाएगा ये आपका और ये 6 आ जाएगा. कैंसिल कर दो. 9 7 जा 63 हो जाएगा. 7 5 जा 35. C इज इक्वल टू 35 डिग्री C. विच ऑप्शन इज करेक्ट? I think it's D option is correct. No problem. If the temperature is 0 डिग्री F, अब फारेनहाइट में यहां पर आप क्या रख दीजिए? 0 रखने के बाद आप कैलकुलेट क्या करेंगे? C. तो C कैलकुलेट करने में आपका आंसर आएगा, अच्छी तरह सॉल्व करिएगा, -17.8 डिग्री C. लास्ट क्वेश्चन है, इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम? किसमें सेम? फारेनहाइट और सेल्सियस में. यस, -40 डिग्री. आप इसी फॉर्मूले में F की वैल्यू -40 रखिए, C की वैल्यू -40 रखिए. दैट विल बी LHS इज इक्वल टू RHS. ओके. लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए अब. दैट्स वेरी सिंपल ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ ज्योमेट्री. लास्ट क्वेश्चन है आपका. सुरेश इज हैविंग ए गार्डन नियर दिल्ली. In the garden, there are different types of trees and flower plants. One day, due to heavy rain and storm on the trees got broken as shown in the figure. The height of the one broken part is 15 meter and the broken part of the tree has fallen at 20 meter away from the base of the tree. Using the geometric concept, answer the following question. Very good. आप ध्यान से देखिए, ये ट्री ब्रोकन पॉइंट ये है. अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा राइट ट्रायंगल बनेगा. राइट ट्रायंगल में अगर ये बेस आपका 20 है और ये आपका 15 है तो आप पाइथागोरस अप्लाई करिएगा. और वो भी कैसे? इफ योर ट्रायंगल इज ABC, so what will be AC square that is equal to 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400. 15 स्क्वायर 225. इट विल बी हाउ मच? 625. सो 625 का रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25. वेरी गुड. अगर ये 25 हो गया तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट? ब्रोकन पार्ट की लेंथ हो गई 25. गुड. व्हाट वाज द हाइट ऑफ द फुल ट्री? लो, ये है 15 और ये है 25 जो ब्रोकन पार्ट आया. तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 40. ये आ गया 40 मीटर. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट.
In the formed right triangle, what is the length of the hypotenuse? Hypotenuse अभी अभी निकाला आपने, कितना आ गया? 25 meter. That is the correct answer. What is the area of the formed right angle triangle? Area of triangle, that is equal to half base into height. It will be half into base, how much? It is 20 and height is 15. So it is 2 tangent and 15. 150 meter square is the area. Which option is correct? D option is correct. Okay. Last है, what is the perimeter of the formed triangle? अब perimeter of the triangle निकालना है, तो perimeter में तीनों sides का sum कर दीजिए. सम करेंगे तो क्या आएगा? 20 मीटर है, 20 मीटर है, 15 है और 25 है. तो 20 plus 15 plus 25. So how much it is? 40 and this is 20. It will be 60 meter. Perimeter of the triangle. So option A is correct. Thank you very much. अगर आपको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से भी अगर लगे हों कि हाँ आपके कमिंग फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, सो प्लीज you like and subscribe my channel. Thank you and thanks to all.